Good evening, everyone. Namaskar, Shastriyakal. How are you all? I hope you all are fine and doing pretty well. My dear students, after a long time, I am back with a new video. And the topic is how to find the unit digit in the questions. Such kind of questions are very on nowadays in the competitive examination. I have seen in many of the competitive examinations such kind of question that are related to how to find out the unit digit. Okay, so I am sharing some shortcuts to find out the unit digit. So this video is very useful for you. You have to do one thing, just watch the complete video and learn all the tricks and the tips to calculate such kind of questions. Okay, so let's start. I have shared few questions that are entirely different from each other. So the first question that I have seen in the paper, that is, find the unit digit in this particular case. It means they are saying that the question is given like this: 348 multiplied with 43 multiplied with 16 multiplied with 21. Whatever the result will come, you have to tell the unit digit of that result. This is the question. Okay, now how to solve? Suppose if we are going to solve it in a traditional way, means first of all we are going to multiply these all four numbers and we are going to get the result. That can be a method. Then it will take a lot of time, and you know very well that we all struggle in competition with time management. So we have less time to solve the question. So in that particular case, we should know the tricks how to solve the question. Like in this one, actually what our aim is to find the unit digit of the answer. Okay, so for the question as it is given, you have to focus only on the unit digit. Means whatever numbers are given to you, you just pick the unit digit of all the numbers. Like in this particular question, I have highlighted the unit digit with a red ink. As you know, unit digit का मतलब क्या होता है? इकाई, यानी कि पहला नंबर. तो हम लोग देखेंगे ये क्या है? 1, 6, 3 and 8. So you just pick all these digits and forget about rest of the digits of the number. Okay, so just copy 8, 3, 6 and 1. Now multiply the 8 into 3, 24, 6 into 1, 6. Now as I said that you are going to concentrate only on the unit digit. Again you got 24. That has 2 digits. So you just forget about this 2. 6 into 4 will be 24. 24, and now again you forget about this 2. So what is the unit digit that is left? That is 4. So that is your answer. So this is very simple technique. What are you doing exactly? Whatever the numbers are given to you in the questions, you are going to pick only the unit digit of every number and then simply do the operation whatever is given in the question. Like in this one, all the numbers are being multiplied. So we are going to multiply the unit digit. 8 into 3 into 6 into 1, that will become 8 3 is 24 and 6 into 1, 6. Now just forget about this 2. 4 into 6 will be 24, and now forget about this 2. The unit digit will be 4. That is your answer. Okay, now just look at for the second type of question. That is, again the question is same, find the unit digit of this. So in this one you can see that few numbers are being added. So 12,345 plus 567 plus 8,216 plus 21. Again the same funda. What are you going to do? Concentrate only on the unit digit. Forget about rest of the digit. So 5761 I have highlighted with the red ink. So now you are going to pick them and with the same operation that is being mentioned in the question. So 5 plus 7 plus 6 plus 1, 5 and 7 that is 12, 6 plus 1 that is 7 and 12 and 7 that is 19. 19, just ignore 1, you will get 9 as answer. Here also if you are going to ignore 1, 7 plus 2, then also 9 will be your answer. Very simple technique and it takes seconds to solve the questions. Okay. Now the third one,
In the first two question, our operation was same, like multiplication, like addition. Now the question can be of mixed operations also, na? So now I have mixed the operations. 257 plus 44 minus 17 minus 25, yani plus and minus both. So again, concentrate only on unit digit. So 7 plus 4 minus 7 minus 5. When you copy the unit digit, you copy with the same sign that is given in the question. So here 7 plus 4 minus 7 minus 5. Okay. Now 7 and 4, 11, and minus minus will be added. So 7 and 5 will be 12. So 11 minus 12. Here you have to concentrate little bit. 11 minus 12. You know very well 11. We cannot subtract 12 from 11. Otherwise, we will get minus 1. And here we are talking about the unit digit. So you just remember one thing. This is 12 and this is 11. Suppose if I ask you to subtract 2 from 1, you cannot do. So you have to take a borrow. So 11 minus 2 will be 9. So it means whatever the answer will be, your unit digit will be 9. So this will be your answer. क्या करना है फिर से सुन लीजिए. 11 माइनस 12, अगर ऊपर बड़ा नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर ऊपर छोटा नंबर है तो उस केस में आपको पता है कि 1 में से 2 तो नहीं कर सकते, तो हम बोरो करके, जो हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो हम 11 में से 2 माइनस करेंगे 9. तो ये हमारा यूनिट डिजिट तो आ गई ना, तो हमें अब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इट इज़ डन, हो गया, डन, क्लियर. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला है, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, दैट इज़ रिलेटेड टू पावर. ठीक है. अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन है 348 पावर 167 और इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है. तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें क्या है, फ्यू रूल्स कुछ फंडामेंटल हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. लाइक इन केस, देखिए अब आप पहले देखिए कि हमारा जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पर 348, पावर क्या है 167. तो हम पहले बेस की बात करते हैं. बेस का आपको यूनिट डिजिट देखना है. तो बेस का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 8. तो कोई भी नंबर हो तो आप पहले बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे, पहली बात याद रखिएगा. तो अगर मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर यूनिट डिजिट ये होगी तो रूल क्या होगा. तो अगर आपकी यूनिट डिजिट बाई चांस 0 या 1 है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कुछ नहीं करना. ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 1, देन देर इज नो चेंज इन द आंसर. ओके, इट मीन्स if your last digit, if your unit digit is 0 or 1, so whatever the power is in your answer, your unit digit will be 0 or 1. Okay, जैसे for example, suppose if I ask you the question is 201 power 148, suppose this is the question, then there is no need of thinking. आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है 1. तो आपको जैसे ही दिखे कि यूनिट डिजिट 1 है या 0 है, तो वही आपके आंसर में यूनिट डिजिट हो जाएगी, चाहे पावर लाख में हो, हज़ार में हो, करोड़ में हो, हंड्रेड्स में हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1. क्लियर है. इसी तरीके से सपोज करिए आपका क्वेश्चन होता 340 पावर 98. अगेन नहीं सोचना, आंसर क्या आएगा यूनिट डिजिट का 0. क्लियर. अब आप फिर से देखो, एक तो ये रूल हो गया 0 और 1 का. सेकेंड रूल, 3 नंबर को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं अभी के लिए. 4 पे देखो, 4 को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ. 4 पावर 1 अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 4. अगर मैं 4 रेज़ टू पावर 2 की बात करूँ तो ये होता है 16. अगर मैं 4 रेज़ टू पावर 3 की बात करूँ तो ये होता है 64. इफ़ आई टॉक अबाउट 4 रेज़ टू पावर 4, then it becomes 256. अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा पहले 4 आ रही है यूनिट डिजिट, फिर 6 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 6 आ रही है. इट मीन्स इट चेंजेस इटसेल्फ ऑल्टरनेटिवली. ठीक है, एक के बाद एक ये हमेशा चेंज हो रही है, ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही है. अब आप पावर पे ध्यान दो. जब पावर 1 थी और पावर 3 थी, यानी ऑड पावर थी, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिली 4. और जब इवन पावर होती है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है 6. इट मीन्स ये 4 है, इसके 2 नेचर हैं. तो हम उनके लिए एक रूल सेटअप कर देते हैं यहाँ पर कि 4 अगर हमारी यूनिट डिजिट है तो पावर कुछ भी हो. ठीक है, यानी पावर कैसी हो सकती है, तो इवन या ऑड. तो अगर पावर इवन है
तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, क्योंकि आप जानते हो 4 4 16, यानी कि आप ऐसे इमेजिन कर लेना 6। और अगर ऑड होगी यानी कि 1 है या 3 है तो 4 1 4 की पावर अगर 1 है तो 4 ही आता है, तो यूनिट डिजिट क्या रहती है 4। यानी इवन पावर के लिए यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाती है 6 और ऑड पावर्स के लिए क्या आ जाती है 4। तो ये आपका सेकेंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसके सेकेंड पार्ट में आप फिर से ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको 0 और 1 का रूल बताया था, अब मैं आपको सेम रूल फॉलो करते हैं 5 और 6 के केस में। यानी कि अगर आपके पास नंबर है 125 और उस पर पावर आती है 38, तो अगेन आप सोचो मत, अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 5 है तो आपका आंसर में यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। अगर सपोज करिए आपके क्वेश्चन में आता है 336 पावर 25, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है 6, तो फिर पावर कितनी भी हो आपकी यूनिट डिजिट आंसर में क्या आएगी 6 ही आएगी। तो यहाँ पर 0 1 का ही रूल फॉलो होता है, यानी नो चेंज। ओके, अब हम अगेन 7 को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, 8 को स्किप कर देते हैं, अब हम 9 पे आ जाते हैं। 9 का रूल क्या कहता है, बिल्कुल 4 की तरह। जैसे आप जानते ही हो 9 की पावर अगर मैं 1 की बात करूँ तो 9, 9 की पावर 2 की बात करूँ तो 81, 9 पावर 3 की बात करूँ तो ये हो जाता है 7 to 9। यानी ये भी ऑल्टरनेटिवली चेंज करता है, यानी 9 1 9 ऐसा चलता है। तो ऑड पावर्स में क्या आता है 9 और इवन पावर्स में क्या आता है 1। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देखोगे 9 टू पावर x, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो अगर इवन है यानी कि इवन अगर आपकी पावर है तो हमें 1 मिलेगा यूनिट डिजिट, और अगर ऑड है तो हमें क्या मिल जाएगा 9। ये फिर से एक रूल हो गया। अब बात आती है कि हमने जो स्किप करे नंबर उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है और ये सब पे ही लागू होती है, पर कुछ नंबर्स को हमने ऐसे भी पढ़ लिया, कुछ के लिए आप देखिए कितनी इजी ट्रिक है, तो वो आप हर जगह आप लगा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको एक पावर दी जाएगी, फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपका क्वेश्चन है 128, पावर आपको दे रखी है 167। ठीक, अब आपको करना क्या है, जो भी आपको पावर दी हो आप उसको 4 से डिवाइड कर लो। जैसे अगर हम 167 को 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, 4 4 ज़ा 16, नथिंग विल बी लेफ्ट 7, तो 4 1 ज़ा 4, यानी हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 3। तो आपको करना क्या है, पावर को पहला स्टेप 4 से डिवाइड कर लीजिए और ये देख लीजिए कि रिमाइंडर क्या आता है। ठीक, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर हमारा 4 है तो 4 है, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यही 4 हो सकते हैं ऑप्शन, ऑब्वियस है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपको करना क्या है, अब मैंने आपसे कहा था ना आपका नंबर जो है, जैसे 128 था नंबर, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या थी 8, तो यूनिट डिजिट पे हम वही रिमाइंडर पावर लगा देंगे। क्लियर, रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट पे पावर कितनी हो जाएगी 2, रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट पे पावर कितनी हो गई 3, रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट पे पावर कितनी हो गई 4। ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए, उसके बाद आप देखिए कितना इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा 128 पावर क्या थी 167, रिमाइंडर क्या आया था 3, अगर आपको याद हो, तो हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 8, तो हम 8 पे पावर कितनी कर देंगे 3, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8। अब आप जानते हो 8 की पावर 3 कितना होता है 512, तो ऑब्वियसली हमारा 2 बच गया ना, तो हमारी यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो जाएगा 2, सीधा सीधा। अब मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसको लिख लीजिएगा, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ये दे रखा है, चलिए यही एग्जाम्पल हो गया है तो सिमिलर ही है, 348 पावर 167, हमने इसको ब्रेक करा तो हमें 3 मिला रिमाइंडर। अब ऑब्वियसली हमारी यूनिट डिजिट क्या थी 8, तो 8 पे पावर 3 हो गई, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 512, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। अब सपोज करो मैं आपसे कहती हूँ 123, ठीक है, पावर है 102। अब ये क्वेश्चन अगर आप करके देखो मेरे साथ तो हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए 102 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, फिर 2 ले लिया, 5 ज़ा 20, तो 2 रिमाइंडर आया। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 3, 3 यूनिट डिजिट पे और रिमाइंडर आया 2, तो ये क्या आ गया 9। इट मीन्स हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 9। तो बहुत इजी है और ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये अगर आप सारे रूल्स को इफ़ यू रिमेंबर देन इट विल बी वेरी इजी
in seconds you will solve such kind of question finding the unit digit. Okay, सो यू जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो, इसको 2-3 बार देखिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, आपके कुछ थॉट्स हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड इसके बाद मैं आपसे एक क्विज़ भी शेयर करूँगी, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो देखी होगी। सो हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के संग, उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।